Hello everyone, my name is Ritesh Pandey and in this video, we'll talk about hydrogen peroxide. Now hydrogen peroxide or H2O2, we'll talk about its methods of preparation and a very unique term related to measuring the strength of H2O2 which is called volume strength. A little bit of volume strength is taught in stoichiometry and we'll talk about the same in details in this video. Now you'll find H2O2 in the chapter hydrogen and its compounds in class 11 chemistry. So let's begin with the methods of preparing H2O2. You can give a heading like hydrogen peroxide H2O2 methods of preparation. I repeat, you will find this topic in the chapter hydrogen of class 11 chemistry. Let's begin with the most common method of preparing H2O2. Now this happens to be the most common method of preparing H2O2 where the reaction is BaO2.8H2O. This is hydrated barium peroxide. This is hydrated barium peroxide treated with dilute H2SO4. Hydrated barium peroxide treated with dilute H2SO4. You know barium sulfate is a white precipitate. Barium sulfate is a white precipitate. This is a white precipitate and this is how H2O2 is prepared. This is how H2O2 is prepared. We'll learn peroxides are not very stable compound. Peroxides बहुत stable compound नहीं होता है. So पहला नियम है कि peroxide always comes from a peroxide. A peroxide always comes from a peroxide. So H2O2 a peroxide will come from barium peroxide. This is not normal barium peroxide. This is hydrated barium peroxide. And with this method of preparing H2O2, ये सबसे common method है preparing H2O2 का. Some key points are written. These are some key points related to the preparation of H2O2 using hydrated barium peroxide and H2SO4. All these points can be put up in form of questions और इससे काफी सारा इंफॉर्मेशन, काफी सारा फैक्ट्स, काफी सारा नॉलेज हम लोग H2O2 के बारे में जानने वाले हैं. Let's talk about these points one by one. Now you'll want to copy all of it. First of all, normal barium peroxide is not used. BaO2.8H2O यूज करते हैं. So हमेशा hydrated barium peroxide is used. The first point is barium peroxide taken is always hydrated. हमेशा dilute acid लेते हैं. Concentrated acid is never taken. Similarly, nitric acid HCl is never used. हमेशा dilute sulfuric acid लेते हैं, concentrated sulfuric acid नहीं लेते हैं, nitric acid HCl नहीं लेते हैं. Then phosphoric acid, carbonic acid ले सकते हैं और कभी-कभी carbonic acid, phosphoric acid is preferred over H2SO4. H2SO4 लेने का एक कारण ये भी है that H2SO4 is the most popular inorganic acid. You might know sulfuric acid is the largest produced acid on the planet. You can also say the largest produced inorganic acid or the largest produced inorganic compound on the planet is sulfuric acid. Sulfuric acid readily available होता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं. वरना फॉस्फोरिक कार्बोनिक एसिड कुड बी यूज्ड एंड एट टाइम्स प्रेफर्ड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट लेते हैं, कंसेंट्रेटेड नहीं लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HCl यूज नहीं करते हैं. Then ice cold temperature is maintained. मतलब all of this is done around 0 degrees Celsius. H2O2 is stored in dark colored wax coated bottles. H2O2 is stored in dark colored bottles, wax coated bottles away from heat and light. And last but not the least, एक अजीब practice है जब इन दोनों को react कराते हैं. When barium peroxide is reacted with sulfuric acid, हमेशा barium peroxide को acid में डालते हैं. Always peroxide is added to the acid. हमेशा peroxide को acid में डालते हैं. इसका उल्टा कभी नहीं करते हैं. कभी भी acid को barium peroxide में नहीं डालते हैं. तो ये भी एक strange fact है. You will want to note down all of them. And all of them will have a common answer. Which I told you is a very particular significant fact about H2O2. That H2O2 is very very unstable. So एक बार ये सारा पॉइंट्स कॉपी करने की जरूरत है. इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक पेरोक्साइड से पेरोक्साइड आता है, पेरोक्साइड इज नॉट स्टेबल, तो पेरोक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड से नहीं आएगा. जो पेरोक्साइड लेंगे वो भी हाइड्रेटेड लेते हैं. एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए. नाइट्रिक एसिड HCl नहीं ले सकते. फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को प्रेफरेंस मिलता है. आइस कोल्ड टेम्परेचर पर करते हैं. हमेशा H2O2 को प्रिजर्व करने के लिए डार्क कलर्ड वैक्स कोटेड बॉटल्स में रखते हैं. इस रिएक्शन में पेरोक्साइड हमेशा एसिड में डालते हैं, कभी एसिड पेरोक्साइड में नहीं डालते. नाउ एक बार ये सारा कॉपी करने के बाद इन सारे इश्यूज का, इन सारे पॉइंट्स का
सेम आंसर है विच इज अबाउट दिस फैक्ट. H2O2 is a very unstable compound. H2O2 में peroxo bond होता है. H2O2 is a very unstable compound and it dissociates under all conditions. मतलब this is a natural spontaneous process. H2O2 dissociating into 2H2O plus O2. Naturally इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O2 dissociates producing H2O plus O. ऑक्सीजन का डायटोमिक फॉर्म में बैलेंस करने के लिए 2H2O2 becoming 2H2O plus O2 लिखा हुआ है. And this process is very very exothermic. This is very very exothermic. Delta H negative मतलब ये exothermic है. This is very very exothermic. तो energetically the process is very feasible. Energetically the process is very feasible. जो process इतना exothermic है मतलब energetically बहुत feasible होगा. Secondly H2O2 का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे जानते हैं. ऐसा रफ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं H2O2 में. नेचुरली ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पेरोक्सो बॉन्ड है. पेरोक्सो बॉन्ड इज वेरी अनस्टेबल. पेरोक्सो बॉन्ड इज वीक. पेरोक्सो बॉन्ड इज वीक. पेरोक्सो बॉन्ड इज अनस्टेबल. पेरोक्साइड्स आर अनस्टेबल. H2O2 हर कंडीशन में डिसोसिएट करता है. H2O2 को जनरली जब जरूरत होती है तभी बनाते हैं. कुछ दिन स्टोर करने से H2O2 पूरा डिसोसिएट कर जाता है. नेचुरली H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और H2O2 डिसोसिएट करके ऑक्सीजन निकाल देता है. काफी दिन H2O2 को स्टोर करने के बाद डार्क बॉटल में अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट फिर भी H2O2 पूरा डिसोसिएट कर देता है. आई रिपीट, H2O2 जब जरूरत होती है तभी बनाते हैं, बिकॉज अगर उसको स्टोर करके रखने जाएंगे उसमें सिर्फ वाटर ही मिलेगा. जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड फिजेज आउट. H2O2 को भी डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखने के बाद आफ्टर अ व्हाइल पूरा डिसोसिएट कर जाएगा. दिस इज नेचुरल, फिजिबल, वेरी एक्सोथर्मिक और इसके सैंपल में से ऑक्सीजन निकलेगा, बाकी बॉटल में सिर्फ वाटर ही बचेगा. ये भी एक फैक्ट है क्यों इसमें हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं. नाउ एक तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वेरी एक्सोथर्मिक, वेरी स्पॉन्टेनियस. इट विल हैपन अंडर ऑल कंडीशंस. मतलब इट विल डिसोसिएट इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइल भी नहीं कर सकते इसको, ये लिक्विड फॉर्म में डिसोसिएट कर जाता है. एंड द डिसोसिएशन इज एक्सेलरेटेड बाय, ये सब कुछ कॉपी करने की जरूरत है. इट्स एक्सेलरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट. इसीलिए इट्स केप्ट अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट इन डार्क बॉटल्स and is catalyzed by metals, bases and basic oxides. Metals or metallic oxides are basic in nature. So presence of basic oxide or bases or metallic oxide will accelerate the dissociation. एक तो खुद ब खुद डिसोसिएट करता है, मेटल बेसिस होने से और ज्यादा डिसोसिएट करेगा. नेचुरली द डिसोसिएशन इज रिटार्डेड बाय, कभी कभी प्रोसेस को रिटार्ड करते हैं. मतलब अगर H2O2 को प्रिजर्व करना है, H2O2 को बचा के रखना है, the process is accelerated by metallic basic oxides. It's retarded by the presence of acid, alcohol, acetanilide etc. You know about acetanilide from organic chemistry. Naturally अगर बेस इसको डिसोसिएट कराता है तो एसिड इसको बचाएगा. एसिड, अल्कोहल, acetanilide will help in preserving H2O2. ये सारा फैक्ट्स पता होना चाहिए. It is also accelerated by presence of oxidizing agent. I can add one more thing. It's accelerated by presence of oxidizing agent. मतलब एक तो ये प्रोसेस खुद ही बहुत स्पॉन्टेनियस है, जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आई कैन राइट H2O2 बिकमिंग H2O plus O. अगर इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको ऑक्सीजन मिल गया, ये और रेडिली होगा. दिस विल हैपन इवन मोर रेडिली. इसको अगर ऑक्सीजन मिल गया, दिस विल एक्सेलरेट इवन मोर रेडिली. एक तो खुद ही स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलने से और जल्दी डिसोसिएट करेगा. हीट, लाइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल्स, बेसिस, बेसिक ऑक्साइड्स, ये सब इस डिसोसिएशन को एक्सेलरेट करेंगे. अगर इसको बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है, विल वांट टू कीप इट इन एसिडिक मीडियम और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एसिटानिलाइड. Now let's go back to all those points which were related to the preparation of H2O2. Hydrated barium peroxide. Hydrated barium peroxide के साथ दो चीजें होंगी. Hydrated barium peroxide, एक तो hydrated barium peroxide में there will be water of crystallization जो एक कूलेंट का काम करेगा, जो सिस्टम को ठंडा रखेगा. दूसरा, hydrated barium peroxide will have more surface area. This will have more surface area. सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होने से बेरियम सल्फेट की कोटिंग होने में टाइम लगेगा. एक बार बेरियम सल्फेट की कोटिंग हो गई, देन द एक्शन ऑफ एसिड ओवर पेरोक्साइड विल स्टॉप.
अब बेरियम सल्फेट की कोटिंग से प्रॉब्लम भी है और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट से फायदा भी है। फायदा क्या है? अगर ये प्रेसिपिटेट होता है, अगर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, अगर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है तो H2O2 को एक्वस मीडियम में H2O2 को बनाने में बहुत सुविधा है। ये रिएक्शन हुआ, इसको फिल्टर कर दिए। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है तो यहां पर इसके प्रेसिपिटेट होने से एक फायदा है। प्रेसिपिटेट होने से फायदा क्या है? यू विल ओनली फिल्टर इट आउट, सिर्फ फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कोई प्रोसेस अगर H2O2 को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं जिसको संभाल के रखना इतना डिफिकल्ट है, जो हर कंडीशन में डिसोसिएट होता है, अगर कुछ सोल्यूबल यहां पर बनता और इन दोनों को सेपरेट करना पड़ता तो H2O2 सारा खत्म हो जाता। तो ऑल्दो ये प्रेसिपिटेट है, पर प्रेसिपिटेट होने से एक बेनिफिट है कि ओनली दिस विल बी फिल्टर्ड आउट और एक एक्वस मीडियम में मेरे को H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इट्स अ नेसेसरी एविल, मेरे को एक प्रेसिपिटेट ही चाहिए यहां पे। अगर ये कुछ सोल्यूबल होता तो इन दोनों को सेपरेट करने में H2O2 ऐसे ही खत्म हो जाता। यहां पर सेपरेट करने के लिए सिंपल मेथड है फिल्ट्रेशन। इसको फिल्टर कर लेंगे, H2O2 का सैंपल निकल जाएगा। पर ये भी इंश्योर करेंगे कि इसकी जो कोटिंग हो रही है, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो ज्यादा समय तक हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट तब तक H2O2 बन सके। एंड फॉर दिस टू हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नेचुरली ज्यादा सरफेस एरिया होना विल हेल्प। किसी भी चीज में से अगर वाटर निकाल लेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, उसका एरिया कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वाटर डालने से किसी का भी वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, एरिया बढ़ जाता है। सो हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रहेगा और इसकी सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगी। इट विल टेक मोर टाइम फॉर बेरियम सल्फेट टू प्रेसिपिटेट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट एसिड लेंगे, कंसेंट्रेटेड नहीं लेंगे। कंसेंट्रेटेड नहीं लेंगे फॉर टू रीजंस। कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ दो प्रॉब्लम है। कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड कोई भी कंसेंट्रेटेड एसिड एक तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इट विल जनरेट मोर हीट, इट विल जनरेट मोर हीट। हीट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ H2O2, हीट इज नॉट गुड फॉर H2O2, उसको डिसोसिएट करा देगा। सेकेंडली नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंडली नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी सॉ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ प्रॉब्लम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ प्रॉब्लम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको और ज्यादा डिसोसिएट करवाता है। तो एक तो हीट ज्यादा निकलेगा, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द सेम प्रॉब्लम इज विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इन ऑल फॉर्म्स इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड कितना भी डाइल्यूट हो, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HCl ना तो ऑक्सीडाइजिंग है, फिर भी इसका डाइल्यूट फॉर्म क्यों नहीं लेते? एक तो नाइट्रेट भी सोल्यूबल होता है। HCl के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट की जगह बनेगा बेरियम क्लोराइड। ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बनेगा बेरियम क्लोराइड। नाउ बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल, बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल, बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल है। तो यहां पर बेरियम क्लोराइड बनेगा जो प्रेसिपिटेट नहीं होगा और हमको बेरियम क्लोराइड और H2O2 को सेपरेट करना पड़ेगा। वो सेपरेट करने में H2O2 खत्म हो जाएगा। सेपरेट करने में H2O2 will be lost. You don't want to disturb H2O2. I told you the precipitate of barium sulfate is good because सिर्फ उसको फिल्टर करके H2O2 मिल जाता है। तो HCl नहीं ले सकते, ना तो ये कंसेंट्रेटेड है, ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग है। प्रॉब्लम है कि बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल, इवन नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। तो नहीं चाहते हुए भी मेरे को H2SO4 लेना पड़ता है बिकॉज बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट। विल टॉक अबाउट फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसकी बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। व्हाई इज इट प्रेफर्ड? आइस कोल्ड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड अगेन बिकॉज हीट, हाई टेम्परेचर विल डिसोसिएट H2O2। तो आइस कोल्ड टेम्परेचर भी ये भी एक कॉमन टर्म है। अरे आइस कोल्ड टेम्परेचर से कम में जा नहीं सकता वरना मीडियम फ्रीज हो जाएगा, एक्वस मीडियम में। तो कितना कम टेम्परेचर रख सकते हैं? जब तक वो आइस नहीं बने 0 डिग्री तक ही वाटर या एक्वस मीडियम को रखा जा सकता है। तो आइस कोल्ड टेम्परेचर एक बहुत कॉमन फ्रेज हो गया है। बेसिकली आइस कोल्ड का मतलब होता है जब तक लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं उतना ठंडा करते हैं, क्योंकि हीट इसको डिसोसिएट कराएगा। यू वांट द टेम्परेचर टू बी लो, द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इज आइस कोल्ड 0 डिग्री। H2O2 stored in dark colored wax coated bottles. Dark colored bottles will make sure कि it's away from heat and light. Heat and light से दूर रखते हैं। Bottle, glass bottle. You know glass is also a mixture of metallic silicates. ग्लास में मेटेलिक सिलिकेट्स होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं। तो नेचुरली glass bottle which also contains metallic silicates, glass contains metallic silicates, और किसी भी तरह का मेटेलिक इंप्योरिटी
किसी भी तरह का मेटेलिक इंप्योरिटी और H2O2 डिसोसिएट करने लग जाएगा। तो वैक्स कोटेड बॉटल्स में रखते हैं जिससे ग्लास के कांटेक्ट में नहीं है, मेटल सिलिकेट के कांटेक्ट में भी H2O2 डिसोसिएट करेगा। ये जो लास्ट फैक्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, हालांकि सुनने में ये अजीब लगता है पर कॉमन सेंस से एक बात समझ में आ जाएगी, ये सारी बात समझ में आ जाएगी, प्रोवाइडेड ये फैक्ट्स पता है कि बेस या मेटल्स डिसोसिएट और ज्यादा करते हैं, एसिड इसको रिटार्ड करता है, एसिड इसको बचा के रखता है। तो एसिडिक मीडियम इज प्रेफर्ड। अगर पेरोक्साइड को एसिड में डालेंगे, ये कहानी जैसे समझ सकते हैं, अगर एसिड में पेरोक्साइड को डालेंगे, अगर एसिड में बेरियम पेरोक्साइड डालेंगे तो जो भी H2O2 बनेगा इट विल बी बोर्न इन एन एसिडिक मीडियम। अगर बेरियम पेरोक्साइड को H2O2 में एसिड में डालेंगे, नेचुरली हमेशा बेरियम पेरोक्साइड विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक बार सोच के समझ में आ जाता है। अगर बेरियम पेरोक्साइड को एसिड में डालते हैं, बेरियम पेरोक्साइड रिएक्ट होता जाएगा, बेरियम पेरोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, धीरे धीरे करके एसिड खत्म होगा, पर जो भी H2O2 बनेगा, H2O2 विल बी बोर्न इन एसिडिक मीडियम। अगर ये एसिडिक मीडियम में बनता है, इट्स गुड फॉर द हेल्थ ऑफ H2O2। एसिडिक मीडियम इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ H2O2 बिकॉज एसिड रिटार्ड्स द डिसोसिएशन ऑफ H2O2। नाउ अगर इसका उल्टा करते, एसिड को बेरियम पेरोक्साइड में डालते, सो डेफिनेटली एसिड विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, H2O2 एसिडिक मीडियम में नहीं बनता। ये बात आई होप एक दो बार देख के पढ़ के समझ में आ जाती है कि बेरियम पेरोक्साइड को एसिड में डालते हैं, उल्टा नहीं करते हैं, बिकॉज ऐसा करने से यू विल हैव H2O2 फॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम which is good for the health of H2O2. The reverse is not done because you want H2O2 to be formed in acidic medium. Acid will retard the dissociation of H2O2. Acidic medium is good for the health of H2O2. So we were able to answer all the points. We were able to understand all the points considering that H2O2 is very unstable. H2O2 is very unstable. Phosphoric acid, carbonic acid की बात अभी कर लेंगे. Phosphoric acid, carbonic acid की बात अभी कर लेंगे. Let's move to a couple of methods जहां पे phosphoric acid यूज हुआ है. Phosphoric acid की जगह अगर यहां पर कार्बोनिक एसिड यूज होता, फॉस्फोरिक एसिड की जगह अगर यहां पे कार्बोनिक एसिड यूज होता तो मे बी बेरियम कार्बोनेट बनता. बोथ आर प्रेसिपिटेट्स एंड यू वांट प्रेसिपिटेट जिससे सिर्फ इसको फिल्टर किया H2O2 मिल गया. यू वांट अ प्रेसिपिटेट जिससे इसको फिल्टर करके निकाल लिया, H2O2 मिल गया. सेपरेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्ट्रेशन से काम हो जाता है. बेरियम फॉस्फेट, बेरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है. along with this फॉस्फोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड से क्या फायदा है? फॉस्फोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड से फायदा है some metals which form soluble sulfate. अरे बेरियम पेरोक्साइड में भी तो इंप्योरिटी हो सकती है. बेरियम पेरोक्साइड में या कोई भी पेरोक्साइड में इंप्योरिटी हो सकती है. बेरियम के अलावा अगर और कोई मेटल है, हो सकता है वो मेटल सोल्यूबल सल्फेट बनाता हो, पर वो इनसोल्यूबल फॉस्फेट और कार्बोनेट बनाता है. Phosphates carbonates are more insoluble. Phosphates carbonates are more insoluble than sulfate. हो सकता है सल्फेट भी कहीं पर प्रेसिपिटेट हो, पर कहीं पर कोई मेटल का सल्फेट हो सकता है सोल्यूबल हो, पर फॉस्फेट कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो. सो नेचुरली वो इंप्योरिटी, वो मेटेलिक इंप्योरिटी फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में फॉस्फेट और कार्बोनेट बनकर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे. अगर सोल्यूबल सल्फेट के फॉर्म में वो इंप्योरिटी H2O2 के साथ में रह गया, नाउ दिस मेटल विल डिसोसिएट H2O2. दिस इंप्योरिटी इन बेरियम पेरोक्साइड, दिस मेटल व्हिच विल बी लाइक एन इंप्योरिटी, जो एक इंप्योरिटी रहेगी इन बेरियम पेरोक्साइड, ये मेटल हो सकता है सल्फेट का फॉर्म में सोल्यूबल हो, पर फॉस्फोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड होने से वो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा. कोई मेटेलिक इंप्योरिटी नहीं रहेगी. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो इंप्योरिटी H2O2 को डिसोसिएट कराता. सो दिस इज द प्रेफरेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड. सोडियम पेरोक्साइड के साथ में H2SO4 भी ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट H2O2. ये भी पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से ही H2O2 आता है. एक पेरोक्साइड हमेशा पेरोक्साइड से आता है. Na2O2 प्लस H2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O2, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O2. These are methods which are, इसको मर्क्स प्रोसेस भी बोलते हैं. काफी सारी किताब में इसको भी लैब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग H2O2 बनाता है. सोडियम पेरोक्साइड या बेरियम पेरोक्साइड एज द टू पॉपुलर पेरोक्साइड्स.
These are generally the lab methods of preparing H2O2. Let's move to some industrial methods. A very common industrial method is electrolysis of 50% H2SO4. This could be another method. This is electrolysis of 50% H2SO4, 50% और concentrated sulfuric acid. NCERT में इसको सल्फेट्स बोलता है, कंसेंट्रेटेड सल्फेट्स बोलता है. ये पूरी लैंग्वेज एनसीईआरटी की है, ये पूरी लैंग्वेज एनसीईआरटी की है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी सल्फेट, एनोड पे सल्फेट का ये बाई सल्फेट आएगा, HSO4 माइनस आएगा, 2 HSO4 माइनस एनोड पे जाकर के 2 HSO4 माइनस एनोड पे जाकर के H2S2O8 बनाएगा, जिसको परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. इसका एक और नाम मार्सल्स एसिड भी है. H2S2O8 ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, H2S2O8. ये पूरी भाषा एनसीईआरटी की है. अब कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 50% सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट्स का इलेक्ट्रोलिसिस से बाइसल्फेट एनोड पे जाके H2S2O8 बनाता है और उसको हमको हाइड्रेट करना पड़ता है. इसका जब हाइड्रेशन करते हैं H2S2O8 का, तो यहां से 2 मोल H2SO4 वापस मिल जाता है. H2O2 is formed. H2O2 is formed. H2SO4 is regenerated. सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट इज रीजेनरेटेड. इसको वापस काम में लिया जा सकता है और नेचुरली H2O2 मिल जाता है. ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग H2O2. ये भाषा दी हुई है एनसीईआरटी में. अभी के टाइम में एनसीईआरटी इज सच एन इंपॉर्टेंट बुक. ऑल एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस माइट कम फ्रॉम एनसीईआरटी की लैंग्वेज. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. H2O की जगह अगर D2O ले लिए, H2O की जगह अगर D2O ले लिए, H2O2 की जगह D2O2 बनेगा. एंड दिस इज द लैब मेथड, दिस इज द नाउ यूज्ड करंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग D2O2. यहां पर H2S2O8 की जगह पोटेशियम K2S2O8 लिया हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है. पर H2O की जगह अगर D2O लेते हैं, H2O की जगह अगर D2O लेते हैं, तो H2O2 की जगह D2O2 बनेगा. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है H2O2 बनाने का, और D2O2 बनाने का ये लैब मेथड है. विल वांट टू मूव टू द नेक्स्ट मेथड. सब कुछ कॉपी करने की जरूरत है. ये इलेक्ट्रोलिसिस में जो होता है H प्लस और बाइसल्फेट, ये एनोड पे जाएगा, ये 2 H2S2O8 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद. तो सब कुछ बैलेंस दिखता है. ये भी बिल्कुल बैलेंस दिखता है. 2 H2SO4 H2O2. विल वांट टू मूव ऑन. नाउ दिस इज अनदर इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग H2O2. ये इनिशियली अमेरिका में, यूएस में ये H2O2 बनाने के लिए यूज हुआ था. ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है. मैंने मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी से कॉपी की है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई फैक्ट कभी छूट ना जाए. देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड 2-ethyl anthraquinol. 2-ethyl anthraquinol. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एंथ्राक्विनोल. दिस इज एंथ्राक्विनोल. एंथ्राक्विनोल से 3 बेंजीन रिंग जैसा याद आता है, और यहां पर एक OH, यहां पर एक OH, यहां पर 2 नंबर कार्बन पर इथाइल है, C2H5, 2 कार्बन का चेन है. यहां पर होता तो अल्फा होता, 1 होता, यहां पर है तो बीटा है, 2 है. 2-ethyl anthraquinol. 2-ethyl anthraquinol का एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, और एंथ्राक्विनोल बन जाता है एंथ्राक्विनोन. ये जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये बन जाता है एंथ्राक्विनोन. एंथ्राक्विनोन, दिस इज एंथ्राक्विनोन. अब जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ये सिंपल है. जैसे अल्कोहल से कीटोन बनता है, जैसे अल्कोहल से कीटोन बनता है, नेचुरली जब ये एंथ्राक्विनोन बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये बीच वाले रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, बीच वाले रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी. दिस विल बिकम एंथ्राक्विनोन. जब एंथ्राक्विनोन को वापस रिड्यूस करते हैं, ये वापस जब OH बन जाता है, तो नेचुरली ये जब हाइड्रोजन छोड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में, और प्रोसेस क्या है, एंथ्राक्विनोल लग रहा है, H2O2 बन रहा है, हवा का ऑक्सीजन लग रहा है, दिस इज हाइड्रोजनेशन. ये जो हाइड्रोजन यहां पर निकलेगा, यहां पर H2O2 बन जाएगा, ये H2O2 बन जाएगा. इसको वापस रिड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस साइकिल विल बी रिपीटेड. तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इकोनॉमिक मेथड है. आई रिपीट, अमेरिका में सबसे पहले H2O2 ऐसा बनाना स्टार्ट हुआ. अभी दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड. दिस इज द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ H2O2. एंथ्राक्विनोल टू एंथ्राक्विनोन. ये भाषा बिल्कुल एनसीईआरटी से लिखी हुई है. ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में H2O2 बनाया, और ये साइकिल चलता जाएगा, क्योंकि इसको रिड्यूस करके फिर हम लोग एंथ्राक्विनोल बना लेंगे. हवा का ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हमको मिल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट से, H2O2 बनता जा रहा है. इंडस्ट्रियल मेथड है, इकोनॉमिक मेथड है, और बाकी पूरी भाषा एनसीईआरटी से है.
This case 1% H2O2 is formed. It is extracted with water, concentrated to 30%. I told you ये एक बार जान लेना चाहिए because ये सब कुछ NCERT में लिखा हुआ है. It can be further concentrated to 85% by careful distillation under low pressure. The remaining water can be frozen out to obtain pure H2O2. So deliberately मैंने NCERT के काफी सेगमेंट्स लिए हैं जिससे ये सब कुछ कॉपी करके ये सारे फैक्ट्स भी आपके पास रहे, नोटबुक में रहे. You will want to copy this. और इसके बाद ये इक्वेशन का मैंने एक पिक्चर भी दिया है. ये सब कुछ कॉपी करने के बाद दिस इज द पिक्चर. दिस इज एंथ्राक्विनोल. 2 नंबर पे यहाँ पे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल. सो दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल. दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल. 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल. 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल. क्विनोल से ये अल्कोहल का ओल समझ में आएगा. 2 OH है. इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन. 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन. क्विनोल से OH अल्कोहल समझ में आएगा और क्विनोन से अल्कानोन ये कीटोनिक ग्रुप समझ में आएगा. नेचुरली जब इसका ऑक्सीडेशन होगा बीच वाला रिंग ऑक्सीडाइज होता है. ये हम लोग एरोमेटिक में पढ़ते हैं. 2 बेंजीन रिंग को बचा लेते हैं. बीच वाला ये ऑक्सीडाइज होगा. इसकी एरोमेटिसिटी भले ही खत्म हो जाएगी बट ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ में H2O2 बना देता है और ये साइकिल चलता रहता है बिकॉज इसको वापस रिड्यूस कर लेते हैं. तो नेचुरली द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑन. ये हवा का ऑक्सीजन है. नॉर्मल हाइड्रोजन पैलेडियम कैटलिस्ट से मिल जाता है. इकोनॉमिक प्रोसेस है, सस्ता प्रोसेस है. इसको वापस रीजनरेट कर सकते हैं. तो ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ H2O2 के काम आती है. H2O2 काम का कंपाउंड है. उसकी यूसेज की बात हम लोग हो सकता है अगले वीडियो में H2O2 की केमिकल रिएक्शंस और यूसेज की बात करें. H2O2 लार्ज स्केल में इस तरह से बनता है यूजिंग इथाइल एंथ्राक्विनोल. Now with this we come to the end of the methods of preparation. Now we'll talk about the volume strength of H2O2. I repeat, volume strength of H2O2 कभी कभी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के साथ में पढ़ा दिया जाता है. अभी हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात थोड़ी डिटेल्स में करेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है और इट्स डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैसियस एट NTP or STP available per unit volume of H2O2. I told you H2O2 dissociate होता है and the dissociation of H2O2 is very exothermic. ये प्रोसेस बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है. It will happen under all conditions. No matter how hard you try, H2O2 को बचा के रखना मुश्किल है. एक पॉइंट के बाद सारा H2O2 डिसोसिएट ही कर जाता है, सिर्फ पानी बचा रहता है. अब एक एक्वस सैंपल में जहां H2O2 पूरा डिसोसिएट कर जाएगा और ऑक्सीजन मिलेगा, पानी बचा रहेगा. मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. इसके एक टाइटली कैप्ड बॉटल्स को खोलेंगे, ये ऑक्सीजन निकल के चला जाएगा, खाली पानी बचा रहेगा. इसीलिए H2O2 जब जरूरत होती है तभी बनाते हैं. जिस सैंपल से ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा मतलब उसके अंदर में ज्यादा H2O2 होगा. नेचुरली ये ऑक्सीजन पानी से तो आएगा नहीं. एक्वस सैंपल में पानी होगा और H2O2 होगा. H2O2 को हम लोग उसका सॉल्यूट मान सकते हैं. अब जैसे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में परसेंट स्ट्रेंथ में कोई भी यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है. यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ बताता है पर लीटर या पर केजी कितना अमाउंट है केमिकल का. यहां पर बिकॉज पूरा H2O2 पूरा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. जितना ऑक्सीजन मिलता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2, the amount of oxygen, in this case the volume of oxygen at NTP obtained per unit volume of H2O2 could be a way of measuring strength. Naturally अगर सोल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा H2O2 है, ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, ज्यादा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा. डेफिनेशन क्या है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP. गैसियस ऑक्सीजन जो निकल रहा है फ्रॉम H2O2 विच इज एक्वस. ये एक्वस सोल्यूशन है. अब जितना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा, जैसे मोलैरिटी ज्यादा होती है, नॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, जितना स्ट्रॉन्ग H2O2 सोल्यूशन होगा, जितना पानी कम H2O2 ज्यादा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, उतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा. सो दिस विल क्वालिफाई एज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. एक बार मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. अगर 10 वॉल्यूम H2O2 है, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है, 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होगा पर यूनिट वॉल्यूम से 10 टाइम्स ऑक्सीजन निकलेगा. मतलब 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होगा कि 10 ml H2O2 विल प्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ml की बात करते हैं. 10 वॉल्यूम का मतलब होगा 1 ml H2O2 per ml. 1 ml H2O2 will give you 10 ml of oxygen at NTP. It will give you 10 ml of oxygen at NTP. 1 ml से 10 ml आएगा,
5 ml से 50 ml आएगा, 5 ml से 50 ml ऑक्सीजन आएगा, 10 ml से 100 ml ऑक्सीजन आएगा। ये एक रिलेटिव यूनिट है, रिलेटिव यूनिट है। नेचुरली 1 लीटर सैंपल से 10 लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, 10 लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड 10 का मतलब क्या हो रहा है यहां पर। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है, सो पर यूनिट वॉल्यूम उसका 10 टाइम्स ऑक्सीजन निकल सकता है। 1 ml सैंपल से 1 ml सैंपल से 10 ml ऑक्सीजन निकल सकता है, 5 ml से 50 ml निकल सकता है, 10 ml से 100 ml निकल सकता है, 1 लीटर से 10 लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, एंड सो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है, 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है अगर ये सैंपल x लीटर्स है तो इसमें से 10x लीटर्स ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में निकल सकता है। आई रिपीट, ये x लीटर्स H2O2 है एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इससे 10 टाइम्स ऑक्सीजन निकल जाएगा इन गैसियस फॉर्म। So this is how volume strength is defined. This is how volume strength is defined, and we'll want to quickly do a particular conversion. एक दो conversion हम लोग देख लेंगे, which is between volume strength and normality molarity, between volume strength normality molarity, and between volume strength and percent strength. I'll give you a small clue. मैं पहले रिजल्ट की बात करूंगा। We will prove कि one normal H2O2 will be equivalent to 5.6 वॉल्यूम H2O2। मतलब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये रिलेशनशिप होगा, 1 नॉर्मल विल बी 5.6 वॉल्यूम। यू कैन नोट इट डाउन। सिमिलरली विल प्रूव दैट 1% H2O2 will be equivalent to almost 3.29 और 3.3 वॉल्यूम H2O2। हम लोग ये दोनों एक्सप्लेन करने वाले हैं। What you can do is वीडियो को पॉज करके एक बार ये खुद ट्राई कर सकते हो। अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हो। You'll have to prove this. 1 normal is 5.6 volume and 1% is 3.29 volume. You can give it a try. You can pause the video. You can try it of your own. Otherwise, resume करके you can check for the solution. I'm going to start the solution right away. वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप जानने के पहले सबसे पहले विल वांट टू नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2. H2O2 producing H2O plus O2. नाउ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक तरीका है। देयर इज अ वेरी फंडामेंटल वे ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये 32 ग्राम्स यहां से निकल रहे हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स, यू नो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 8। What I can do is unitary method. अगर 32 ग्राम आता है 68 ग्राम से, 32 ग्राम आता है 68 ग्राम से, naturally 8 ग्राम, which is 1 equivalent of this equivalent weight of oxygen. 1 equivalent of oxygen will come from 17 ग्राम of H2O2. एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन जिससे आएगा, एक इक्विवेलेंट जिससे आएगा, that will be the equivalent weight of the oxidizing agent. ये बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने निकाला है। अदरवाइज यहां पर थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसा है, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना थोड़ा चैलेंजिंग है, उस कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक इक्विवेलेंट क्या होता है? किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक इक्विवेलेंट वो वेट होता है जिससे एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन निकलता है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम 17 ग्राम्स ऑफ H2O2। नेचुरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इज 17। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इज 17। ये सॉल्यूशन देखने के पहले थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पढ़ लेना चाहिए। Now what is 1 normal? 1 normal is 17 grams or 1 equivalent per liter. 1 normal is 17 grams or 1 equivalent per liter. ये जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, ये बिल्कुल फंडामेंटल सोल्यूशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है। इवेंचुअली हमको ये प्रूफ करना है। I'll go back to this equation. 2H2O2 becoming 2H2O plus O2. एंड यूल वांट टू लिसन वेरी केयरफुली। ये जो ऑक्सीजन है ये गैसियस फॉर्म में है। अब ये 1 मोल 22.4 लीटर्स होता है। ये 1 मोल 22.4 लीटर्स होता है। ये 1 मोल 22.4 लीटर्स होता है। 22.4 लीटर्स होता है एट एसटीपी और एनटीपी। दिस इज नेचुरली 68 ग्राम। 68 ग्राम से अगर 22.4 लीटर आता है तो 17 ग्राम से कितना आएगा? नेचुरली 17 ग्राम से इसका 1/4 आएगा। एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यू नो इज दिस विल बी 5.6 लीटर्स। अब यहां से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ जाएगा कैसे नॉर्मेलिटी और 5.6 का रिलेशनशिप होने वाला है। 17 ग्राम H2O2, 17 ग्राम प्योर H2O2,
17 gram pure H2O2 will give you 5.6 liters of oxygen. Now suppose, ये एक सिंपल सा assumption है, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 17 ग्राम प्योर H2O2 में वाटर ऐड करके इसको 1 लीटर बना दिया, अगर ये 1 लीटर सैंपल है, 1 लीटर में एक इक्विवेलेंट H2O2 है, अगर 17 ग्राम प्योर H2O2 है, 1 लीटर सैंपल में 17 ग्राम प्योर H2O2 है, आई कैन कॉल इट 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल H2O2. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वन इक्विवेलेंट, 1 लीटर में एक इक्विवेलेंट है, 1 नॉर्मल है, 1 लीटर में एक इक्विवेलेंट है, 1 नॉर्मल है। 17 ग्राम प्योर H2O2 में वाटर डाल के अगर 1 लीटर बना दिया तो ये 1 लीटर सोल्यूशन में एक इक्विवेलेंट H2O2 है, आई कैन कॉल इट 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल H2O2. अब इस 1 लीटर से ऑक्सीजन कितना निकलेगा? पानी से तो निकलेगा नहीं, ये ऑक्सीजन तो निकलेगा H2O2 से। 1 लीटर से 5.6 लीटर आ रहा है, 1 लीटर से 5.6 लीटर आ रहा है, 1 लीटर से 5.6 लीटर आ रहा है। इसके पहले हमने देखा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 1 लीटर से 10 लीटर आता तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10, 5 से 50, 1 से 10, 1 से 10 तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10। यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है। 1 लीटर से 10 लीटर आता तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10। सिमिलरली अगर 1 लीटर से 5.6 लीटर आता है, हम लोग इसको 1 नॉर्मल भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको 1 नॉर्मल भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको 1 लीटर से 5.6 लीटर आता है 5.6 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। इसको बहुत इत्मीनान से समझने की जरूरत है। मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं लिया है, मैंने कोई अलजेब्रा यूज नहीं किया है, यहां पर कहीं पर मैंने कोई XYZ वेरिएबल नहीं लिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है। 68 ग्राम से 22.4 लीटर्स, पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया H2O2 का, 17 ग्राम विल गिव मी 5.6 लीटर्स। अगर एक इक्विवेलेंट से 1 लीटर बनाया, 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल, 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल विल गिव यू 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको 1 नॉर्मल बोले या 5.6 वॉल्यूम बोले, एक ही बात है। 1 लीटर से 5.6 लीटर्स आता है, इसको 5.6 वॉल्यूम बोलेंगे। वेदर आई कॉल इट 1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल बोले या 5.6 वॉल्यूम बोले, एक ही बात है। इसका मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मोलारिटी के टर्म्स में ये 11.2 हो जाएगा नेचुरली। मोलारिटी के टर्म्स में नेचुरली 11.2 हो जाएगा बिकॉज molarity of H2O2 will always be normality into 2. Because molarity by normality, I would rather write, एक बार ये सारी चीजें ना थोड़ी से स्टोइसियोमेट्री से पढ़ लेने की जरूरत है, ये सब चीज थोड़ी सी स्टोइसियोमेट्री से पढ़ लेने की जरूरत है। Normality by molarity, I will rather want to write normality with molarity. n factor 2 है, n factor कैसे निकालते हैं? H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट, H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 34, H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 34 और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 17। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा समझ जाएगा कि इसका n फैक्टर 2 है। n फैक्टर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। 1 मोलर 2 नॉर्मल होगा। 1 मोलर मतलब 1 लीटर में 34 ग्राम्स, 34 ग्राम्स मतलब 2 इक्विवेलेंट। 1 मोलर मतलब 1 लीटर में 34 ग्राम्स, 34 ग्राम्स इज 2 इक्विवेलेंट। सो 1 मोलर विल बी 2 नॉर्मल, 1 मोलर विल बी 2 नॉर्मल। इसका n फैक्टर 2 है, 1 मोलर विल बी इक्वल टू 2 नॉर्मल। तो नेचुरली जो भी वैल्यू नॉर्मेलिटी में आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मोलैरिटी आएगा। सो नेचुरली आई शुड रादर राइट n फैक्टर इज 2। सो अगर नॉर्मेलिटी के साथ 5.6 है तो मोलैरिटी के साथ 11.2 है बिकॉज n फैक्टर इसका 2 है। अगर ये 1 मोलर है तो 2 नॉर्मल है, अगर ये 5 मोलर है तो 10 नॉर्मल है, 5 मोलर है तो 10 नॉर्मल है। तो नेचुरली जो भी मोलैरिटी आएगी नॉर्मेलिटी के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 5.6 विल बिकम इंटू 11.2। सो नेचुरली द रिलेशनशिप विल बी नॉर्मेलिटी के टर्म्स में इंटू 5.6, मोलैरिटी के टर्म्स में इंटू 11.2। इसको n फैक्टर बोलते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और विच इज द रेशियो ऑफ नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। ये सब चीज थोड़ा सा स्टोइसियोमेट्री से देख लेने की जरूरत है। नेचुरली
1 मोलर विल बी 2 नॉर्मल। मोलरिटी में जो वैल्यू आएगा, सपोज एक सोल्यूशन अगर x मोलर है, अगर एक सोल्यूशन x मोलर है तो नेचुरली इट विल बी 2x नॉर्मल, इट विल बी 2x नॉर्मल इंटू 5.6 जब करेंगे तो नेचुरली x के साथ में इट विल बी इंटू x के साथ में इंटू 11.2। तो अगर मोलरिटी m है तो 11.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ जाएगी। 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 5.6 वॉल्यूम, जो नॉर्मेलिटी होगी उससे 5.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा। एंड फाइनली दिस वे विल बी एबल टू एक्सप्लेन that 1 normal is equal to 5.6 वॉल्यूम। एक बार ये करने के बाद हो सकता है ये काम थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके लिए भी सबसे पहले परसेंट स्ट्रेंथ का मतलब समझना होता है। ये मैं स्टोइचियोमेट्री में बताता हूं सिर्फ परसेंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। सिर्फ परसेंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अगर 20% कुछ भी दिया हुआ है, अगर 20% NaOH दिया है, सिर्फ परसेंटेज का मतलब होता है वॉल्यूम ग्राम पर 100 ml। ये हमेशा मास बाय वॉल्यूम होता है, सिर्फ परसेंटेज का मतलब होता है, मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो 1% H2O2 का मतलब होने वाला है 1 ग्राम इन 100 ml। सिर्फ परसेंटेज होने से मास बाय वॉल्यूम होता है, 20% मतलब 20 ग्राम इन 100 ml। ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर परसेंट बाय मास हो सकता है, परसेंट बाय वॉल्यूम हो सकता है, परसेंट बाय मास बाय मास होता है, परसेंट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में सिर्फ परसेंटेज दिया रहता है। 20% NaOH by mass will be 20 ग्राम इन 100 ग्राम, 20% NaOH by volume will be 20 ml इन 100 ml। पर मैक्सिमम प्रॉब्लम में सिर्फ 20% दिया रहता है। जब सिर्फ परसेंटेज दिया है मास बाय वॉल्यूम, सो 1% H2O2 का मतलब भी 1 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन होने वाला है। वापस इसको प्रूफ करने के लिए we'll go back to the same equation, this time 2H2O2 becoming 2H2O plus O2, 68 ग्राम से ऑक्सीजन आता है मेरा, 68 ग्राम से ऑक्सीजन मेरा आता है 22400 ml। 68 ग्राम से ऑक्सीजन आता है मेरा 22400 ml। नेचुरली अब 1 ग्राम लेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, 1 ग्राम विल गिव मी 22400 by 68 एंड दिस वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट 329 पॉइंट समथिंग। ये 329 पॉइंट समथिंग आएगा, हम लोग 329 से काम कर चला लेंगे। नाउ यहां से वापस एक इंटेलिजेंट बच्चे को परसेंटेज और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। वापस एक बेसिक एजम्पशन लेंगे। 1 ग्राम प्योर H2O2 में वाटर डाल के, 1 ग्राम प्योर H2O2 में वाटर डाल के अगर इसको 100 ml कर दिया तो ये 100 ml में 1 ग्राम है, 100 ml में 1 ग्राम है, 100 ml में 1 ग्राम है। 1 ग्राम प्योर H2O2 में वाटर डाल के उसको 100 ml कर दिया, 100 ml में 1 ग्राम है। आई कैन से इट्स 100 ml ऑफ 1% H2O2, इट्स 100 ml ऑफ 1% H2O2, दिस इज 100 ml ऑफ 1% H2O2। 100 ml से ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 100 ml से ऑक्सीजन आ रहा है 329 ml। अगर 100 ml से 329 ml आ रहा है, 100 ml से 329 ml आ रहा है, नेचुरली 1 ml से 3.29 ml आएगा। 1 ml से 3.29 ml मतलब 3.29 वॉल्यूम, 1 ml से 3.29 वॉल्यूम मतलब 3.29 वॉल्यूम, 1 ml से 3.29 ml मतलब 3.29 वॉल्यूम। नाउ इसको 1% बोले या 3.29 वॉल्यूम बोले एक ही बात है। इसको 1% बोले या 3.29 वॉल्यूम बोले एक ही बात है। 1% इज 3.29 वॉल्यूम। नेचुरली अगर ये x% है, दिस विल बी 3.29x, दिस विल बी 3.29x वॉल्यूम H2O2। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का, जो भी परसेंटेज होगा, इफ दिस इज x% इंटू 3.29, x% इंटू 3.29 विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया 1% इज 3.29 वॉल्यूम। इसको अच्छे से कॉपी करने की जरूरत है। आई होप ये भी बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से किया हुआ काम है, कोई भी वेरिएबल नहीं लिया है, कोई अलजेब्रा यूज नहीं किया है। 68 ग्राम से एनटीपी पे 22.4 लीटर ml में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 100 ml की बात करते। अब अगर वाटर डाल के इसको 100 ml कर लिया, 100 ml में 1 ग्राम है, इट इज लाइक 100 ml ऑफ 1% H2O2 जो ऑक्सीजन दे सकता है 329 ml। 1 ml से 3.29 ml आएगा। इसको 1% बोलो या 3.29 वॉल्यूम बोलो, इसको 1% बोलो या 3.29 वॉल्यूम बोलो, एक ही बात है। विच मीन्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 3.29। नाउ
यहां से एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, अगर एक सोल्यूशन 30% है, अगर एक सोल्यूशन 30% है, 30% H2O2 के साथ में एक नाम एसोसिएटेड है, 30% H2O2 को हम लोग मॉक्स परहाइड्रोल बोलते हैं। H2O2 का एक और नाम है परहाइड्रोल, एक साइंटिस्ट की बाद इसका नाम हो गया मॉक्स परहाइड्रोल। 30% H2O2 इज द H2O2 व्हिच इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में, लैबोरेटरी में जनरली H2O2 जो मिलता है, जो काम आता है, मार्केट में कमर्शियल H2O2 जो मिलता है वो 30% होता है, इसको मॉक्स परहाइड्रोल बोलते हैं। इससे कैलकुलेशंस आसान होती हैं, बिकॉज अगर ये 30% है, अगर ये 30% है और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने जाएंगे तो 30 इंटू 3.29 करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 100 वॉल्यूम होगा। तो 100 वॉल्यूम H2O2, 100 वॉल्यूम H2O2 विल बी 30%। परसेंटेज निकालने के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ से 3.29 को डिवाइड करेंगे, तो 100 से 30% आ जाएगा, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए परसेंटेज को 3.29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30% विल बिकम 100 वॉल्यूम। नेचुरली कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10% या 10 वॉल्यूम, 10% या 10 वॉल्यूम। नेचुरली 10% और 10 वॉल्यूम में 10% ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज 10% विल बी ऑलमोस्ट 33 वॉल्यूम। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए इंटू 3.29 करना पड़ता है, 30% 100 वॉल्यूम होता है, इसीलिए इसका नाम मॉक्स परहाइड्रोल है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैंने पूरा एनसीईआरटी का ही फोटो यहां पर लगा दिया है, इसका सोल्यूशन भी है। ये सोल्यूशन पूरा समझ सकते हैं या फिर एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 10 वॉल्यूम है, अगर ये 10 वॉल्यूम है जिसकी स्ट्रेंथ फाइनली 30.36 ग्राम पर लीटर आई है, इफ इट इज 30.36 ग्राम पर लीटर, इसको डिरेक्ट करने का तरीका है 10 वॉल्यूम और वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंट स्ट्रेंथ में कैसे जाते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंट स्ट्रेंथ में जाएंगे, 3.29 से डिवाइड कर देंगे। 10 वॉल्यूम बाई 3.29, दिस विल बी द परसेंट स्ट्रेंथ, दिस विल बी द परसेंट स्ट्रेंथ, मतलब इतना ग्राम पर 100 ml में, इतना ग्राम पर 100 ml में। और इफ दिस इज नंबर ऑफ ग्राम पर 100 ml, इफ दिस इज नंबर ऑफ ग्राम पर 100 ml, if this number of grams per 100 ml, then this into 10, which will be 100 upon 3.29, ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है ग्राम पर लीटर। अगर परसेंटेज से करें, अगर नॉर्मेलिटी से करते तो भी एक लाइन में हो जाता। 10 वॉल्यूम को अगर 5.6 से डिवाइड करते, इतना नॉर्मल होता, इंटू 17 करते, दिस वुड हैव बीन लाइक 170 बाई 5.6, ये भी वही वैल्यू आएगा, विच विल बी ऑलमोस्ट 30.36 ग्राम पर लीटर। नॉर्मेलिटी से भी निकाल सकते हैं, परसेंट स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हैं, एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये सोल्यूशन भी देख लेना चाहिए, पर इसको सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका है। ये क्वेश्चन इंडिया के सारे एग्जाम में पूछ चुका है, दिस हैज कम इन ऑल एग्जाम्स ऑफ दिस कंट्री। ये नीट का क्वेश्चन पेपर है, 96 में पूछा, 97 में पूछा है, लगातार 2 साल पूछा है। एंड आई कैन प्रॉमिस ये बार बार और भी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा होगा। वर्षों पहले ये आईआईटी में पूछा था, फिर डब्ल्यूबीजेई में पूछा था, हर स्टेट लेवल एग्जाम में, हर ऑल इंडिया एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। स्टूडेंट को याद ही हो जाता है 1.5 नॉर्मल इज 8.4 वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ये सेम डेटा के साथ सेम क्वेश्चन काफी बार पूछा है, 8.4 वॉल्यूम इज द राइट आंसर। And with this, we come to the end of this session, where I hope a little bit of numericals, एक basic question from NCERT, 1 question from the real exam, and इस वीडियो को रिवाइंड करके, पॉज करके concepts वापस रिवाइज किए जा सकते हैं। Methods of preparation starting from barium peroxide and all of volume strength I tried to cover in this video. I hope this will help you with questions in the real exam. In the next video, we'll talk about the physical and chemical properties of H2O2 along with the usage of H2O2. This much for the time being. Thank you so much.